Assalamu alaikum. In the last lesson, we discussed Bronsted-Lowry theory and Arrhenius theories. In this one, we are going to look at the Lewis theory of acids and bases. This is the third theory of acids and bases, and we are also going to classify substances as acid Lewis acids और bases. सही है. So पहले हम देखेंगे Lewis concept क्या है acids और bases का, and then we are going to apply this theory for classifying the substances as acids or bases. If you remember, Arrhenius theory dealt with hydrogen and hydroxyl ions. सही है. Arrhenius theory talked about hydrogen ion and hydroxyl ions. It said in aqueous solution, acids produce hydrogen ions and bases produce hydroxyl ions. सही है. So Arrhenius theory was about hydrogen and hydroxyl ions. The next theory that we learned was Bronsted-Lowry theory. It dealt with protons. Okay, proton मतलब hydrogen ion के बारे में थी वो. So it said acids are the substances which can donate hydrogen and bases are the substances which can accept that hydrogen or proton. ठीक है. So it was about proton. Now the next theory that we have is Lewis concept or Lewis theory of acids and bases. It's about electrons. सही है. तो हमने अभी तक दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन वाला, फिर हमने प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एंड नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज electrons. Okay, so the theory says acid is a substance which can accept a pair of electron. Acid कोई ऐसा substance है जो कि electron का pair accept कर सकता है, and bases are the substances which can donate a pair of electron. और bases are the substances है जो कि electron को donate कर सकते हैं, यानी कि दे सकते हैं. ठीक है. This is the basic concept of Lewis theory. Now we are going to look at an example. Okay, the example is boron trifluoride. So boron trifluoride, if you remember, I just want to give you a brief introduction of boron and fluorine, because boron trifluoride is actually BF3. BF3 is one boron and three tri means three fluorines around it. Okay, three fluorides around it. So boron belongs to group 3. Okay, and fluorine belongs to group 7. So obviously हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करेंगे, सो वी शुड नो बोरॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में. बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 3, सो इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स. फ्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7, सो इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दी लास्ट शेल और द वैलेंस शेल. सही है. सो ये बेसिक चीज़ जो है मुझे बताना ज़रूरी है, ताकि हम इनको बिकॉज वी आर डीलिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स, सो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए वैलेंस शेल में. ओके, हाउ डज द स्ट्रक्चर लुक लाइक? Boron trifluoride has one boron in the center. So this boron has 3 electrons. ये जो रेड वाले क्रॉसेस हैं ये क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है. आपने 9th क्लास में 9th ग्रेड में जब आप थे तो आपने वहाँ पे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, तो ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स ही हैं. ओके, सो बोरॉन हैज़ 3 electrons and there are 3 fluorines. Trifluoride means 3 fluorines, 1, 2 and 3. So how many electrons are there around fluorine, each fluorine atom? 7. So 7 electrons for each fluorine atoms denoted by dots. Okay, so boron has 3 electrons crosses shown by the crosses, and for fluorine each fluorine has 7 electrons drawn by the dots. सही है. तो ये हो गया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर. अब होता क्या है? when you take boron trifluoride and let it react with ammonia, okay, when you let it react with ammonia, so basically हमें ये बताना है कि इनमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है. अब अमोनिया के बारे में वी ऑलरेडी हैव एन आइडिया दैट अमोनिया इज़ अ बेस. सही है, हम ये पीछे पढ़ कर आए हैं. बट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एसिड कैसे हो सकता है, ये अभी हमने पढ़ना है. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, जब हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो होता क्या है, बेसिकली अमोनिया हैज़ अ लोन पेयर. कैन यू सी दैट लोन पेयर? ओके, सो एन नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, दैट लोन पेयर गोज टू बोरॉन. बोरॉन एक्सेप्ट्स दैट लोन पेयर. And what does the Lewis theory say? Lewis theory says that acids are the substances which can accept a pair of electrons. So ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली ये जो लोन पेयर है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बोरॉन के पास जा रहे हैं. सही है, बोरॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड उसको एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है. और अमोनिया क्या कर रहा है? अमोनिया उस लोन पेयर को दे रहा है, डोनेट कर रहा है.
सो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या करा है, हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया। कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या बन गया है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज वेन एवर अ लोन पेयर इज डोनेटेड एंड एक्सेप्टेड, सो बोथ ऑफ दोज स्पीशीज मेक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पे क्या हुआ है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। दिस arrowhead actually shows coordinate covalent bond. So this lone pair is going to the boron, boron is accepting it, and that is why this boron trifluoride is an acid and this ammonia is a base. एक और एग्जांपल देख लेते हैं अमोनिया की। when ammonia, because we know that ammonia is a base already, we know this, so वहाँ पे हमने बेसिकली बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को एसिड कंसिडर किया, एसिड क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अमोनिया को बेस क्लासिफाई करके दिखाएंगे। सो अमोनिया क्या है, बेसिकली NH3, अमोनिया इज NH3 एंड वी नो दैट व्हेन वी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया वी हैव अ लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 5 और इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5। सो एक एक से तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होगी, बिकॉज देयर आर 3 हाइड्रोजन्स, तो एक एक से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और लोन पेयर बचा एक, ठीक है। पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस इज अ लोन पेयर। व्हेन वी टेक हाइड्रोजन और HCl, व्हेन वी टेक एनी एसिड, लेट्स सपोज वी हैव हाइड्रोजन आयन, ओके, हाइड्रोजन आयन जहाँ पे भी आप लिखे हुए नजर आओगे, दैट ऑलवेज मीन्स दैट वहाँ पे एसिड है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोजन आयन जहाँ पे भी नजर आएंगे आपको वहाँ पे एसिड है। सो ये मैंने एसिड डाला अमोनिया के अंदर, जब अमोनिया उससे रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयन से, तो क्या होता है, बेसिकली ये लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन के पास चला जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो लोन पेयर है किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास। जब ये हाइड्रोजन के पास में चला गया तो ऑब्वियसली इनके बीच में क्या बन गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अगेन वी नो दिस, व्हेन लोन पेयर इज ट्रांसफर्ड, दैट इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया को हमने क्या क्लासिफाई कर दिया, एज अ बेस। तो अगर आपको पेपर में मिलता है कि यू हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, यू हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया the formation of coordinate covalent bond, as well as you will be asked to prove that ammonia is a base. So what example you are going to use, you are going to use this example, ठीक है। you're going to show that ammonia actually transfers its or donates its lone pair to hydrogen and forms coordinate covalent bond. In that case ammonia acts as a base and this is already an acid, ठीक है, hydrogen. ल्यूइस एसिड्स और ल्यूइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कौन सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि ल्यूइस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। इन जनरल, मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा बेसिकली मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड नज़र आए जिसके अंदर आपके पास 3 हेलोजेंस हों, समझ जाना कि वो ल्यूइस एसिड है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली क्या हेलोजन क्या करते हैं, हेलोजेंस आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेलोजेंस टेंड टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल्स। जब भी वो मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, जैसे Fe है, यहाँ पे Al है, यहाँ पे B है, बोरॉन, तो ये क्या करते हैं, हेलोजेंस बीइंग वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे टेक द इलेक्ट्रॉन्स, और इसी वजह से उन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वो हेलोजेंस जो होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, ऑलवेज रिमेंबर दैट कंपाउंड इज अ ल्यूइस एसिड। सिंपल कैटाइंस, ऑल सिंपल कैटाइंस, कैटाइंस क्या होते हैं, मेटल्स जब अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं दे फॉर्म कैटाइंस, ठीक है। सो मेटल्स जब भी कैटाइन फॉर्म करते हैं, मेटल्स व्हेन फॉर्म कैटाइंस, दोस कैटाइंस आर कंसिडर्ड एज ल्यूइस एसिड्स। ल्यूइस बेसिस कौन सी होती हैं, इन जनरल अगर हम बात करें तो ल्यूइस बेसिस कौन सी होंगी, न्यूट्रल स्पीशीज़ एट लीस्ट विद हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पे अमोनिया की एग्जांपल पढ़ी थी, अमोनिया के अंदर लोन पेयर था, ठीक है। तो जिन स्पीशीज़ में लोन पेयर होता है, जैसे कि अमोनिया, अमाइंस, एल्कोहल्स, इन सब के अंदर लोन पेयर होता है, ठीक है। इन जनरल नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड्स होंगे, ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड्स होंगे, सल्फ़र वाले जो कंपाउंड्स होंगे, उनके पास लोन पेयर होगा, ठीक है। देखो लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो ल्यूइस बेसिस हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ और एनाइंस, सारे एनाइंस यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़, जैसे कि क्लोराइड आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, ये रहा साइनाइड आयन,
ये रहा क्लोराइड आयन, ये रहा हाइड्रोक्सिल आयन। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो जिनमें भी लोन पेयर होगा, लोन पेयर कौन कौन से एलिमेंट्स में होता है याद रखना, ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन और हेलोजेंस के अंदर लोन पेयर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड हेलोजेंस, all those compounds having these atoms, oxygen, sulfur, nitrogen and oxygen, sulfur, nitrogen and halogens, they are basically उनके जो अमोनिया, उनके जो अमाइंस होंगे, अल्कोहल्स होंगे, दे आर, that's all from my side. If you have any queries, you can ask in the comment section below, or you can talk to me directly on the WhatsApp. Meet you in the next lecture. Hope you understood this well. Thank you so much. Allah Hafiz.